Enter the invite code to unlock your PPT. What is the invite code, re baba? What is the invite code, re baba? There is only one invite code. Negiton, Negiton, Negiton. चलो स्टार्ट करते हैं. चलिए बेटा, आज के सेशन में आपको मजा आने वाला है. You are going to enjoy like anything. I will be giving you each and every information. हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सेस रिलेटेड है सब कुछ बताने वाला हूं, और यहां से आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा सोचने का कि अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का. ठीक है, चलो चलो अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी. बेटा ये 8 इंस्टीट्यूट हैं. दीज आर द 8 इंस्टीट्यूट हु आर कंडक्टिंग गेट एग्जाम, हु आर ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली, who are organizing the GATE exam one by one on rotation basis. GATE 2021 was organized by IIT Bombay and GATE 2022 will be organized by IIT Kharagpur. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बेटा, GATE 2022 will be conducted by which IIT? टाइप इन चैट बॉक्स, फटाफट से टाइप कर दो बेटा, फटाफट से टाइप कर दो, फटाफट से टाइप कर दो. गेट 2022 कौन सी आईआईटी ऑर्गेनाइज करने वाली है? आईआईटी खड़गपुर. ओके, आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. अब सुनना ध्यान से. गेट 2021 वाज कंडक्टेड, गेट 2021 वाज कंडक्टेड इन 27 पेपर्स. टोटल 27 पेपर्स में कंडक्ट हुआ था बेटा. these are those 27 papers. For example, civil is one of the paper, chemical is one of the paper, chemistry is one of the paper, electrical engineering is one of the paper, mechanical is one of the paper, mathematics is one of the paper, metallurgical engineering one of the paper. इसी तरीके से in the same way XE is also one of the paper, जिसको बोला जाता है इंजीनियरिंग साइंसेज. यहां तक क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर विद दिस. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर विद दिस. जिस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द पेपर ऑफ गेट, सिमिलरली इंजीनियरिंग साइंसेज इज आल्सो वन ऑफ द पेपर ऑफ द गेट. इन गेट 2022, as per the information which we have received, 2 more papers are added. That means 2021 was conducted in 27 papers, 2022 will be conducted in 29 papers. जो 2 पेपर ऐड किए गए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. Naval Architecture and Marine Engineering, it is the first paper which added, and Geomatics Engineering, it is the second paper which added in GATE 2022. So please remove this thing from your mind कि सर ये XE है क्या? XE is one of the paper engineering sciences. Now listen carefully. Now listen carefully बेटा. ये XE का क्वेश्चन पेपर कैसा दिखा? How the question paper of XE will look like? कैसा दिखाई देता है तो समझ लेते हैं बेटा. You will be having in XE paper, you will be having total 65 questions. The paper will be of 100 marks, 3 hours. 3 घंटे का पेपर होगा. टोटल 65 questions होंगे, 100 marks का पेपर होगा. XE की बात कर रहा हूं बेटा. I am talking about XE, which is one of the paper of GATE. This XE paper will be divided into 3 sections. ये जो XE पेपर होगा, broadly it will be divided into 3 sections. First section will be of general aptitude. The weightage of general aptitude will be 15 marks out of 100. 5 questions of 1 mark, 5 questions of 2 marks. So 5 into 1 plus 5 into 2, 5 plus 10 is equal to 15. And the syllabus of the general aptitude will be similar to your mechanical general aptitude syllabus or maybe some other.
Okay, general aptitude syllabus is same for all the papers. Now, remember, in engineering sciences, your engineering mathematics will be of 15 marks. Maybe in your mechanical it will be of 13 marks, whatever. But I am saying in engineering sciences, the weightage of engineering mathematics is 15 marks. And what is the distribution of these 15 marks? 7 questions of 1 mark, 4 questions of 2 marks. So 7 into 1 plus 4 into 2. 7 into 1 plus 4 into 2. 7 plus 8 is equal to 15. I hope everyone is clear till here. Now let us come to the third section. Now in this third section, you will be having few papers, few sections, B, C, D, E, F, G, H, टोटल 7 सेक्शंस. ये जो तीसरा वाला टेक्निकल सेक्शन होगा, यहां पर टोटल 7 सेक्शंस होंगे. B to H. A is given to engineering mathematics. Section A is named to engineering mathematics. B, C, D, E, F, G, H. Now out of these, A section is compulsory. A section is compulsory. Engineering mathematics is compulsory in engineering sciences paper. Now out of B, C, D, E, F, G, H, out of these 7 sections, you have to choose 2. What are these 7 sections? I will be telling you. Now look at here, whatever the 2 sections you are choosing, the total marks of each section will be 35. 9 questions of 1 mark and 13 questions of 2 marks each. So 9 into 1 plus 13 into 2, 9 plus 26, 35. तो बेटा हो गए टोटल 100 मार्क्स. 15 marks for general aptitude, 15 marks for engineering mathematics. 15 plus 15 is 30. Now here you are choosing 2 technical sections, each of 35 marks. 35 plus 35, 70. 70 plus 30 is 100 marks. Now what are the varieties of questions? Of course, MCQ, multiple choice question, there will be negative of 33%, 1/3. Numerical answer type, there will be no negative marking. Multiple select question, MSQ, there will be no negative marking or part marking. I hope each and everyone is clear till here. अब ध्यान से सुनना, बेटा. Engineering mathematics is section A, which is compulsory. Now what is section B? Fluid mechanics. What is section C? Material science. What is section D? Solid mechanics. What is section E? Thermodynamics. What is section F? Polymer science and engineering. What is section G? Food technology. What is section H? Atmospheric and oceanic sciences. Now, if you people are from the mechanical background, अगर अभी आप लोग जो देख रहे हैं लाइव, इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल, कितने लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड से जो देख रहे हैं, एक बार टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड. एंड इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड, लेट मी टेल यू व्हाट आर द सेक्शंस रेलिवेंट फॉर यू. आपके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन बनते हैं, एक तो बनता है फ्लूइड मैकेनिक्स, मटीरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स. नाउ out of these 4, B, C, D, E, I will be advising you to leave this part. This is not that much easy. Matlab, this is my personal opinion. If you feel you are very comfortable with the material science, you can go. But I will be asking you, if you are not very comfortable with the material science, then don't go with this, because here they will be asking the material science in very, very, very detail. If your expertise is in material science, then you can go. Now look at here. You will be ending up with 3 options: XCB fluid mechanics, XCD solid mechanics, XCE thermodynamics. Are you getting what I am saying? Out of these 3, you can choose any 2 depending on your interest. I will be discussing the syllabus also. I am going to discuss, and I will be taking your queries also. आपके queries भी लेने वाला हूं. I am going to take your queries also. Don't worry. आपके सारे questions का आंसर करके जाऊंगा रे बाबा. So remember, if you are from the mechanical background, my sincere advice to you is either you go for fluid mechanics XCB, solid mechanics XCD, or thermodynamics XCE. Now let us see the syllabus. एक एक करके मैं आपको सबका syllabus दिखाता हूं.
और आपको बताता हूं कहां पे डिफरेंस है. आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंस ऑल्सो. Let us see the syllabus of XCA first. What is XCA? Type in chat box, re baba. What is XCA? What is XCA? XCA is engineering mathematics. Now I will be telling you where the extra syllabus comes into the picture. Look at here, beta. Diagonalization of matrices. Section 1 is linear algebra. यहां पे आप लोग ये नहीं पढ़ते, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. सेक्शन 2 कैलकुलस, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स आप लोग पढ़ते हो, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स भी आप लोग पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सीक्वेंस एंड सीरीज, हां ये सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है बेटा. मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द एक्स्ट्रा सिलेबस यू पीपल आर हैविंग इन XCA. सीक्वेंस एंड सीरीज में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोग 4 ईयर सीरीज थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अदरवाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नाउ लुक एट हियर. वेक्टर कैलकुलस एनीवेज आप लोग पढ़ते हैं, देयर इज नो डाउट. इन मैकेनिकल यू आर स्टडिंग वेक्टर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओडी आल्सो यू पीपल आर लर्निंग, लेकिन यहां से आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पावर सीरीज हो सकता है, यहां से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े. पीडी आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर XCA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है रे बाबा. प्रोबेबिलिटी तो आप पढ़ते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. हो सकता है यहां पे ये कोरिलेशन वाला पार्ट आपको और डिटेल में देखना पड़े, ठीक है. न्यूमेरिकल मेथड्स एनीवेज नो प्रॉब्लम. तो बेटा ये कुछ मैंने आपको टॉपिक बता दिए. दीज आर द टॉपिक्स विच जनरली यू डोंट सी इन मैथमेटिक्स ऑफ मैकेनिकल और यू आर नॉट डीलिंग इन डिटेल. तो इन टॉपिक्स पर आपको मेहनत करनी है इफ यू आर प्लानिंग टू राइट XC पेपर इंजीनियरिंग साइंसेज. सर अब ये बताओ सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा. एज फार एज मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ XC इज कंसर्न्ड, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. 100% आपके जो मैकेनिकल के क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा सा अपर हैंड पे रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैथमेटिक्स XCA विल बी लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू योर मैकेनिकल मैथमेटिक्स. क्या क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स है मैंने पूरा बता दिया आपको. आई हैव गिवन यू द एक्स्ट्रा टॉपिक्स. यहां पर लीनियर अलजेब्रा में ये टॉपिक है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस. ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है. यहां पर आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ये आपको देखना है. यहां पे 1D हीट इक्वेशन, 2D लाप्लास इक्वेशन आपको थोड़ा डिटेल में देखना है. आपको कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन आपको थोड़ा डिटेल में देखना है. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर विद मैथमेटिक्स सिलेबस. एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं बेटा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आर यू क्लियर विद द सिलेबस ऑफ XCA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? क्या एक्स्ट्रा पढ़ना आपको पता चल गया? बहुत ही डिटेल में लेकर जाने वाला हूं बेटा, आपके एक एक क्वेरी क्लियर करने वाला हूं. सर विल XCA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी लिटिल डिफिकल्ट? यस ऑफ कोर्स इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. चलो नाउ लेट अस कम टू XCB फ्लूइड मैकेनिक्स. यहां पर क्या एक्स्ट्रा है? फ्लूइड प्रॉपर्टीज बिल्कुल पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोज बिल्कुल पढ़ते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बिल्कुल पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड मोशन बिल्कुल पढ़ते हैं, इंटीग्रल एनालिसिस फॉर कंट्रोल वॉल्यूम. यहां पे ये जो RTT है ना, ये RTT थोड़ा सा हमको देखना है, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम. अदरवाइज सब कुछ सेम है. डिफरेंशियल एनालिसिस नो प्रॉब्लम, थोड़ा यहां पे अच्छे से देख लेना. जनरली आप लोग कॉटी फ्लो ढंग से नहीं देखते हो, तो कॉटी फ्लो देख लेना. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द एक्स्ट्रा टॉपिक थिन फिल्म फ्लो, है ना. बाकी लगभग सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं रे बाबा. डायमेंशनल एनालिसिस नो प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी आर सीइंग इन मैकेनिकल. इंटरफ्लोज, इंटरनल फ्लोज सब कुछ देख रहे हैं रे बाबा. बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स असम्पशन, हां ये पोटेंशियल फ्लो वाला अलग हो गया. जनरली मैकेनिकल में हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाते. इन मैकेनिकल वी डोंट गो इन मच ऑफ डिटेल. चलिए और क्या है? प्रेंडल बाउंड्री लेयर इक्वेशंस बिल्कुल देखते हैं, बाउंड्री लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स नो प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव आइडिया यस, ये सब पढ़ लेते हैं.
ड्रैग एंड लिफ्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। तो बेटा XCB में कुछ टॉपिक्स निकल कर आ गए। XCB में नाउ देर आर फ्यू टॉपिक्स विच वी नीड टू स्टडी, विच वी नीड टू फोकस। RTT पे थोड़ा फोकस कर लेना, RTT पे फोकस कर लेना। एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर कॉटी फ्लो, थिन फिल्म फ्लो पे फोकस कर लेना, है ना। पोटेंशियल फ्लो पे फोकस कर लेना। आई होप नाउ यू आर क्लियर। XCB फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या देखना है आपको समझ में आ गया। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर व्हाट यू नीड टू सी विद XCB। एक्स्ट्रा चीज आपको समझ में आ गई। फटाफट से टाइप करेंगे रे बाबा चैट बॉक्स में, आर यू क्लियर विद दिस, व्हाट यू नीड टू डू एक्स्ट्रा इन XCB। XCE, लेट अस गो टू XCE थर्मोडायनामिक्स। नो प्रॉब्लम, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ते हैं, FLT पूरा पढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा पढ़ते हैं, कोई चेंज नहीं है रे बाबा, सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पूरा पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक रिलेशंस पूरा पढ़ते हैं रे बाबा। एवरीथिंग वी आर स्टडिंग एज फार एज मैकेनिकल इज कंसर्न। हां, अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से सुनना। दिस इज वेरी कॉमन क्वेरी विच स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी। ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। बेटा यहां पर इन इंजीनियरिंग साइंसेज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो इंक्लूडेड। बेटा ये थर्मोडायनामिक साइकिल्स है ना, जो ये आपका ATD वाले पार्ट में आता है। इफ यू सी द मैकेनिकल सिलेबस इट विल बी कमिंग इन एप्लीकेशंस पार्ट, रैंकाइन साइकिल, रीहीट, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, VCRS। तो याद रखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, whatever the syllabus you are having in mechanical, whatever the syllabus you are having in mechanical for thermodynamics plus applications of thermodynamics, that is the syllabus of XCE thermodynamics. I hope each and everyone is clear. I hope each and everyone is clear. सबको समझ में आ गया होगा बेटा। I hope each and everyone is clear. बोलो रे बाबा, यहां तक सब लोग क्लियर हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हो। ईच एंड एवरीथिंग यू आर लर्निंग इन मैकेनिकल। The only thing you have to understand in mechanical you are having two parts, thermodynamics and applications part. यहां पर XCE में थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही आपको एप्लीकेशन पार्ट दिया है, साइकिल्स दी हुई हैं, आपका R&AC वाला पार्ट भी दिया हुआ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? सबको क्लियर हो गया? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। बेटा मैं दे दूंगा, जिनको सिलेबस चाहिए मैं सिलेबस दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हो। ईच एंड एवरीथिंग यू आर लर्निंग इन मैकेनिकल। नाउ हियर लेट मी आंसर यू वन मोर थिंग। काफी लोग मुझे पूछते हैं सर हाइड्रोलिक मशीन सिलेबस में है क्या? नो बेटा, हाइड्रोलिक मशीन्स इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज। याद रखना, हाइड्रोलिक मशीन्स नहीं है, फ्लूइड मशीनरी नहीं है। इट इज नॉट देयर इन सिलेबस। बात समझ में आ गई? नाउ लेट अस कम टू XCD सॉलिड मैकेनिक्स। अब बेटा ये जो सॉलिड मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना, सिलेबस देखने में तो बहुत छोटा है, but it is the combination of three subjects. Like your thermodynamics is the combination of thermo plus ATD part. Here it is the combination of three subjects. Of course, mechanics of rigid bodies, mechanics of deformable bodies, और यहां पर वाइब्रेशंस का पार्ट भी है। तो बेसिकली आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड वाइब्रेशंस है, लेकिन सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, सिलेबस ऑलरेडी यू नो। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। तो एवरीवन नाउ नो द सिलेबस, है ना? एवरीवन इज नाउ अवेयर ऑफ द सिलेबस। सिलेबस सबको पता है, सिलेबस सबको पता चल गया। अब सर ये जो सिलेबस एक्स्ट्रा है कहां से होगा? बेटा दोज हु आर गोइंग टू चूज XCB fluid mechanics and XCE thermodynamics, I am going to cover each and everything. जो लोग मेरे से पढ़ेंगे, जहां पर भी पढ़ेंगे, मे बी ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पे मेरा थर्मो चल रहा है, वहां पर मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, और मे बी ऑन यूट्यूब। डोंट वरी, इफ एट ऑल आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू XCE सिलेबस। उसके लिए आपको चिंता ही नहीं करनी है। ओके, ठीक है, चलो
Now let us come to the point. Now let us come to the point. Why are we talking about XE? हम लोग ये इंजीनियरिंग साइंसेस के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसका एक आपको आंसर देता हूं बेटा. इन गेट 2021 द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT Bombay has taken two major decisions. The first decision was third years are also eligible for writing GATE 2021. The second major decision was now the GATE aspirant can write the GATE exam with the two papers. दो पेपर से लिख सकता है. And the same decisions are carried forward by IIT Kharagpur for GATE 2022 also. Sir, what is the meaning of this? The meaning is for GATE 2022, third years are also eligible, and again in GATE 2022, GATE aspirant can write the GATE exam with the two papers. अब ये सर दो पेपर्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, तो मैं बताता हूं बेटा. Let me tell you the combination. Those who are from the aerospace background, their first paper can be aerospace, second paper can be XE. मतलब जितने भी स्टूडेंट एरोस्पेस से पेपर लिखने वाले हैं, they are eligible to write with XE also. They can choose their second paper as XE. Those who are from chemical background, they can also write with XE. एरोस्पेस वाले लिख सकते हैं, केमिकल वाले लिख सकते हैं. मैकेनिकल पीपल कैन राइट विद XE. Mining people, those who are going to write their primary paper with mining, they can also write with XE. Metallurgical background students can write with XE. Textile and fibers students can write with XE. Petroleum engineering background students can write with XE. PI students can write with XE. And of course, XE वाले तो लिख ही सकते हैं as primary paper. Now listen carefully. कितने ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं जो XE को सेकंड पेपर से लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ब्रांचेस के पीपल XE से लिख सकते हैं एज सेकंड पेपर. अब यहां पे मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूं. सर, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर ओनली एंड ओनली फॉर XE. Can't I write? Yes, beta, you can write. Then you choose your XE as primary paper. Then you choose your XE as primary paper. Second doubt. Sir, can I do in this way? Sir, can I do in this way? Can I choose XE as a primary paper and ME as secondary paper? कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. You are also eligible for this. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now, next doubt. Sir, will PSU recruits through XE paper? No, beta. If you are looking only and only for the PSU job, then XE GATE score is not going to help you. Then sir, what is the benefit of writing with XE? This is the reason why we are having this particular session. My friends, now listen carefully. If your dream is एंटरिंग IIT, अगर आपका वो ड्रीम था 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में वो ड्रीम था कि मैं IIT में जाऊंगा, IIT से अपनी एजुकेशन करूंगा, आपका वो ड्रीम है IITN के टैग का, then 100% this GATE XE is going to be your gateway for IITs. इस साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने XE से भी लिखा था और उनको IIT से ऑफर मिल रहे हैं. मैं आपको वो भी बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, कौन सी IIT क्या ऑफर कर रही है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. मैं आपके सारे डाउट्स लेने वाला हूं बेटा. आई विल बी टेकिंग योर ईच एंड एवरी डाउट. आपको XE से रिलेटेड जो भी डाउट है हर चीज मैं क्लियर करने वाला हूं. आई होप नाउ यू आर क्लियर. इफ दोज स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग belong to aerospace, chemical, mechanical, mining, metallurgy, textile, petroleum, production and industrial, yes beta, you can write your second paper with XE. Now बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये डाउट आपको फ्यूचर में आएगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूं बेटा. इफ यू बिलोंग टू जनरल बैकग्राउंड, अगर आप जनरल बैकग्राउंड के हैं एंड इफ यू आर राइटिंग विद वन पेपर, यू हैव टू पे 1500 इज द फी. But
इफ यू वांट टू राइट विद टू पेपर, बार बार मुझे ये डाउट पूछा था बच्चों ने कि सर मैं 2 पेपर से लिखना चाहता हूं, क्या मुझे एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी? यस ऑफ कोर्स बेटा, यू नीड टू पे द एक्स्ट्रा फी, देन योर टोटल फी विल बी 3000 रुपीज। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। अगर आप गेट 2022 का एग्जाम एक पेपर से लिखते हैं तो आपकी फी होने वाली है 1500 रुपीज। बट इफ यू आर प्लानिंग टू राइट गेट 2022 विद 2 पेपर्स, लेट मी से मैकेनिकल प्लस एक्सी, लेट मी से केमिकल प्लस एक्सी, लेट मी से टेक्सटाइल प्लस एक्सी, then 100% you have to pay double fee 1500 plus 1500. Now the next most common doubt, sir, when we are filling the application form there is no option of choosing the section. सर ये B C D E F ये सब चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं आएगा बेटा, it will not come when you are filling the form. The option of choosing the section from B to whatever will come only and only in examination center. जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं, when you are sitting in front of the examination center, आपके सामने में जो सिस्टम रखा है वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का। दूसरा क्वेश्चन, सर कैन आई चेंज इन द मिडवे? मुझे लगा सडनली सॉलिड मैकेनिक्स काफी डिफिकल्ट आ गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत इजी होगा, सर क्या मैं उसको थर्मो में कन्वर्ट कर सकता हूं? यू कैन डू। एग्जामिनेशन सेंटर में आपके पास ये फैसिलिटी है कि अगर आपको बीच में लगे कि मुझे सॉलिड मैकेनिक्स हटाकर थर्मो में जाना है, आप जा सकते हैं। बट आई रिकमेंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इफ यू आर एमिंग फॉर द गुड रैंक, राइट फ्रॉम द बिगनिंग 2 सब्जेक्ट चूज कर लो और दोनों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाओ। लुक एट हियर, क्लियरली रिटन बेटा, द चॉइस ऑफ 2 सेक्शंस फ्रॉम B to H कैन बी मेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आफ्टर व्यूइंग द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन देखने के बाद 2 सेक्शन का चॉइस कर सकते हैं। ओनली 2 ऑप्शनल सेक्शंस कैन बी आंसर्ड एट अ टाइम। अ कैंडिडेट विशिंग टू चेंज मिडवे ऑफ द एग्जामिनेशन टू अनदर ऑप्शनल सेक्शन मस्ट फर्स्ट चूज टू deselect one of the previously chosen optional sections B to H। अगर आपको कोई और सेलेक्ट करना है तो जो आपने पहले चूज किए हुए हैं उसमें से किसी एक को डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। कंफर्म कर दो रे बाबा। नाउ अब मैं आपको बताता हूं बेटा आप कहां कहां जा सकते हैं। लेट अस सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सी। मान लीजिए आप लोग एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट अस सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सी एंड योर ड्रीम इज टू एंटर आईआईटी बॉम्बे। लेट अस सी इन आईआईटी बॉम्बे व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन आई कैन गेट विद द हेल्प ऑफ गेट एक्सी स्कोर। देखते हैं क्या क्या मिल सकता है बेटा। इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इफ यू आर हैविंग द बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, यस। if you are having any discipline, means if you are having the XC gate score, you can get ME1 thermal and fluid engineering. If you are from the mechanical background, you are writing with XC gate paper, you can get ME2 design engineering. If you are from mechanical background, your BTech is in mechanical, you are writing with XC paper also, you can get ME3 manufacturing. और क्या मिल सकता है? एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। बेटा ये तो बहुत ही फेमस है। यस, इफ योर बीटेक इज इन मैकेनिकल एंड यू आर राइटिंग विद एक्सी, यू कैन गेट दिस आल्सो, EN एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग। और क्या मिल सकता है? यू कैन गेट द IE and OR इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च ऑफ IIT बॉम्बे। एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, बीटेक किसी में भी हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपने लिखा है, एक्सी से भी लिखा है, तो भी आप घुस सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन एंटर टू सिविल डिपार्टमेंट आल्सो इफ योर बीटेक इज इन मैकेनिकल एंड यू कैन गेट ओशन इंजीनियरिंग, एक्सी इज आल्सो एलिजिबल। इतने सारे स्पेशलाइजेशंस एलिजिबल हैं IIT बॉम्बे में इफ यू आर गेटिंग गुड रैंक इन एक्सी। मटेरियल साइंस आपको मिल जाएगा बेटा। अगर आपका मैकेनिकल में बीटेक है और आपने एक्सी से लिखा है पेपर, आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगा, प्रोसेस मिल जाएगा, प्रोसेस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आपका बीटेक मैकेनिकल में है और आपने एक्सी से लिखा है, यू विल बी गेटिंग स्टील आल्सो। सो मेनी थिंग्स आर देयर। देखो बेटा ये मैंने पूरा लाइन से लगा दिया है। दीज आर द स्पेशलाइजेशंस विच आर टेकिंग थ्रू एक्सी पेपर आल्सो।
These are the specializations which are taking through XC paper also. Biomedical, ocean engineering, energy system engineering, environmental science and engineering, industrial engineering and operation research, thermal and fluid design, manufacturing, material science, process, corrosion, technology and development, basically SITARA, education technology, urban systems. Yes, ये सारे के सारे ओपन हैं, ये सारे के सारे ओपन है रे बाबा, ये सारे के सारे ओपन है रे बाबा. Similarly, in IIT Madras, these are the specializations which are open if you are having BTech in mechanical and your gate paper is XC. Aerospace, computational and experimental mechanics, biomedical, environmental, hydraulic and water resources engineering, clinical engineering, thermal, design, manufacturing, metallurgical and material science, ocean technology. These are all open in IIT Madras. सारे के सारे IIT Madras में open है बेटा, सारे के सारे open हैं. अब देख लो IISc बैंगलोर के देख लेते हैं. सर मैं IISc बैंगलोर में जा सकता हूं क्या? बिल्कुल जा सकते बेटा. एरोस्पेस, क्लाइमेट, अर्थ साइंस, नैनो साइंस, क्वांटम, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड इनफैक्ट यू कैन एंटर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट आल्सो. आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग गुड गेट एक्सी स्कोर. इतना ही नहीं, देयर इज अ कॉलेज, देयर इज अ मैनेजमेंट कॉलेज कॉल्ड निटी बॉम्बे. निटी बॉम्बे भी आप जा सकते हैं विद द गेट एक्सी स्कोर. IIT गुवाहाटी, रूरल टेक्नोलॉजी, माय गॉड, डेटा साइंस. बहुत लोग इस बार, काफी लोगों ने IIT गुवाहाटी का डेटा साइंस चूज किया है. दे हैव गिवन द प्रेफरेंस. मैं बता रहा हूं बेटा, लगभग इन ईच एंड एवरी IIT यू आर हैविंग फ्यू स्पेशलाइजेशंस वेयर यू कैन एंटर थ्रू गेट एक्सी स्कोर. और IIT बॉम्बे और IIT मद्रास की बात कर दूं तो यहां तो आपको 100% ओपन है रे बाबा. यू कैन एंटर इन एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ मैकेनिकल आल्सो. IIT दिल्ली में जा सकते हैं, IIT दिल्ली में जा सकते हैं. IIT कानपुर इज ओपन, IIT कानपुर इज ओपन. सर आपके किसी स्टूडेंट, आपके किसी जान पहचान में, नोन में किसी को मिला है? बेटा बहुत सारे स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव डन वेल इन गेट एक्सी एंड दे गॉट इन फर्स्ट राउंड ओनली इन COAP 2021. फर्स्ट राउंड ओनली दे गॉट. ये एक बेटा, एक बच्चा है देखो, हिमांशु. He has written with both mechanical and XC. In mechanical he got 921 rank. In XC he got 29 rank. सर कितने मार्क्स थे ये बता दो, ये भी क्लियर कर देता हूं बेटा. उसके 76 मार्क्स थे. He got 76 मार्क्स आउट ऑफ 100. XC से लिखा था 76 मार्क आए, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है. If you are willing to get 75 plus marks, एक बार मुझे कांटेक्ट कर लेना, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनवा दूंगा. I will make the complete strategy for you people कि किस तरीके से आपके 75 प्लस XC में आ सकते हैं. पूरी स्ट्रैटेजी बनवा दूंगा, आपको बस उसको फॉलो करना है. You need to follow that part only. आपको मैं पूरा बता दूंगा कि कहां पर कैसे कैसे आप करके आप 75 प्लस ला सकते हैं. उसके 76 मार्क्स थे, क्या क्या ऑप्शन मिले हैं उसको? अच्छा वो स्लाइड छूट गई. देखो उसको मैं बता देता हूं, उसको थर्मल मिल गया था, ही गॉट थर्मल. IIT मद्रास थर्मल मिल गया था. एरोस्पेस मिल गया था IIC बेंगलोर, है ना. मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप मेहनत करोगे एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर डूइंग वेल, इट इज क्वाइट पॉसिबल यू कैन गेट सम IIT. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. इस साल ये प्रूव हो गया है कि XC का बहुत पोटेंशियल, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ गेट XC. देयर इज नो डाउट इन दिस. इस बात को तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं बेटा. 100% इन गेट 2022 आल्सो सो मेनी स्टूडेंट्स विल बी एंटरिंग IIT विद गेट एक्सी स्कोर. और अभी तो ये पहले राउंड का है, आज दूसरे राउंड का है. तीसरे चौथे पांचवें तक तो बहुत सारा डेटा होने वाला है XC का. तीसरे चौथे पांचवें तक तो जाते थे, बहुत सारा डेटा होने वाला है XC का, जो कि एंटर करेंगे IIT में विद द हेल्प ऑफ गेट एक्सी स्कोर. ये एक बच्चा था, दिस इज अनदर स्टूडेंट मोहित, गेट 2020 से लिखा था, 2020 का बच्चा है. इसको देखो कितनी सारे मिले थे ऑप्शंस. इसका मेरे पास है मटेरियल साइंस मिला था IIT कानपुर, ME, IME, IIT कानपुर एरोडायनामिक्स, ME1Y IIT मद्रास थर्मल बेसिकली, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे ME3 मिल गया था, ES मिल गया था IIT खड़गपुर. तो मिलते हैं बेटा, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं मिलता.
ये देखो ये सब IIT मद्रास का है। ME1Y मतलब आपका थर्मल IIT मद्रास में है ना। ये एक मेरा पर्सनल स्टूडेंट था जितेंद्र, गेट 2020 में उसकी रैंक थी 14, गेट स्कोर 779। उसको क्या मिला था? उसको ये IIT बॉम्बे में एनर्जी साइंस मिल गया था। IIT बॉम्बे में एनर्जी साइंस मिल गया था और इसमें मुझे IIT मद्रास में मिला था उसको, शायद थर्मल मिल गया था उसको। हाँ देखो ये उस बच्चे का है, देखो है ना, हिमांशु का। देखो ये हिमांशु का है जिसको मिला है गेट 2021 XC के थ्रू। IIT गुवाहाटी डेटा साइंस, मैं बोल रहा था IIT गुवाहाटी का डेटा साइंस बहुत सही है। IIT कानपुर मैकेनिकल, IIT दिल्ली इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन, एरोस्पेस IIC बैंगलोर, मैन्युफैक्चरिंग IIT बॉम्बे, थर्मल IIT मद्रास। तो मिल जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कैटेगरी क्या क्या है बच्चों की, लेकिन मिला है, इनको मिल जाता है ना। ठीक है, तो बेटा हो सकता है आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट ऑफ योर डाउट्स मस्ट बी क्लियर। अब मैं आपके डाउट्स एक एक बार ले लेता हूं। सर IIT बॉम्बे में डिजाइन के लिए कितना रैंक या स्कोर? 900 प्लस एम करो बेटा, 900 प्लस गेट स्कोर एम करो। मटेरियल साइंस के बारे में कुछ बताइए। पर्सनली मैंने बोला बेटा इफ यू आर वेरी गुड इन मटेरियल साइंस, देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं कैसे आप जज कर सकते हो। सर आई वांट टू टेक मटेरियल साइंस एज वन ऑफ द पेपर, तो आप एक काम करो, यू सी द प्रीवियस पेपर्स ऑफ मटेरियल साइंस, पिछले 3-4 साल के पेपर देख लो। अगर आपसे बन रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग एटलीस्ट 30 आउट ऑफ 35 ला सकते हो पढ़ने के बाद, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये इस टॉपिक से है, यहां से है, यहां से है, और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आप 30 आउट ऑफ 35 ला सकते हो, तो आप चूज कर लो। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, टेक्निकल में तो आपको स्कोर करना ही करना है। यू हैव टू स्कोर इन टेक्निकल में, क्योंकि बच्चे लाते हैं मार्क्स 27, 28, 29, 30 इजिली ले आते हैं। जो तैयारी करता है अच्छे से उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में मिल जाते हैं 30 प्लस, थर्मोडायनेमिक्स में 30 प्लस मिल जाते हैं। तो आप एक बार देख लेना कि आप ला सकते हो कि नहीं फ्यूचर में। XC का कोर्स कहां मिलेगा? ऑलरेडी मेरा अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है बेटा, अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहा हूं, वहां पर कवर कर रहा हूं XC का सिलेबस। देखो एमटेक करने के बाद तो सुनो एक और चीज काफी लोगों को ये गलतफहमी होती है, सर मेरा दोस्त मैकेनिकल से IIT मद्रास का थर्मल ले रहा है, सर मैं XC से IIT मद्रास का थर्मल ले रहा हूं, तो सर क्या फ्यूचर में मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी, प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होने वाली बेटा। Once you are entering the IIT Madras and both of you are having thermal, then doesn't matter, कोई फर्क ही नहीं पड़ता whether you are entering with mechanical gate score और XC gate score, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एंट्री होनी चाहिए। साजिद मेरा देख लो फटाफट से, उसमें अनअकैडमी प्लस पे मैंने फ्लूइड पढ़ाया हुआ, वो देख लो। है ना? यस, जो लोग फूड टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं उनका फर्स्ट तो फूड वाला रखो, सेकंड थर्मोडायनेमिक्स ले लो। थर्मोडायनेमिक्स विल बी इजी फॉर यू बेटा, आयुष थर्मोडायनेमिक्स विल बी इजी फॉर यू, है ना? गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एमटेक, जहां जहां पे एलिजिबल होंगे वहां पर भर सकते हो आप फॉर्म। वेर एवर दे आर लुकिंग फॉर द हायर क्वालिफिकेशन यू कैन फिल बेटा। गेट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ द गेट स्कोर इज गेटिंग कैलकुलेटेड, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। या एक काम करूं, जिन लोगों को नहीं पता है गेट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने ना एक स्पेशल क्लास ली थी बेटा, ये देख लो, यू कैन गो टू नेगी 10 टेलीग्राम चैनल, मैं आज वहां पे डाल दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ द गेट स्कोर इज गेटिंग कैलकुलेटेड, वहां पे आप देख लेना।
सर आई वॉन्ट टू गिव 2 पेपर इन 3rd ईयर एंड 2 पेपर, हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो बेटा, श्रेय यू कैन गिव बेटा। स्टाइपेंड कैसे मिलता है वो तो आपको पहले अंदर घुसना पड़ेगा विसी, फर्स्ट यू हैव टू एंटर देन यू विल गेट, वो अपने आप मिल जाएगा आपको अगर आप टीए कैटेगरी में है तो। नहीं होगा बेटा रविंद्र, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सर एक्सी का 8 मंथ का प्रिपरेशन बताओ ना, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। एक्सी के लिए कहां से पढ़ें आप, मेरी क्लासेस फॉलो करते रहो एंड इफ यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, फटाफट से अनअकैडमी प्लस पर आ जाओ, वहां पर मैं पूरा एक्सी का सिलेबस सिस्टमेटिक वे में करवा रहा हूं। बिल्कुल बेटा श्रेयस जा सकते हो आप। सर टेल मी अबाउट पॉलीमर साइंस, बेटा पॉलीमर साइंस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, पॉलीमर साइंस आई डोंट हैव एनी आइडिया बेटा। सर मटेरियल साइंस एंड पॉलीमर साइंस का कुछ कोर्स आएगा, मटेरियल साइंस का वी आर प्लानिंग वेरी सून, आई विल बी लॉन्चिंग वन एडुकेटर, मे बी ही विल टेक मटेरियल साइंस फॉर यू पीपल, हो सकता है वो आपके लिए मटेरियल साइंस लेंगे। सर एफएम कब से स्टार्ट होगा, जब से आप बोलोगे तब से स्टार्ट कर दूंगा। ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0, बेटा जो मैंने फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2.0 करवाया उसको फटाफट से देख लो, जो भी एफएम के लिए वेट कर रहे हैं वहां पर मैंने पूरा एक्सी का सिलेबस कवर किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वंस यू आर गोइंग टू आईआईटी डजंट मैटर वेदर, जो भी आपका देखो, हाँ ये जरूर होता है कि कुछ कोर्सेज में एक्सी की सीट्स फिक्स होती हैं, है ना, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। एरोस्पेस और एविएशन में क्या डिफरेंस है बेटा, ये तो मुझे आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा। एमटेक में क्या रहेगा, देखो जितनी भी पुरानी आईआईटीज है, अगर आप देखो ये अगेन बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, बट मैं ये जानता हूं इफ यू वांट टू गेट द प्लेसमेंट यू विल गेट द प्लेसमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका प्लेसमेंट हो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप एमटेक कर रहे हो, जितनी भी पुरानी आईआईटीज हैं, आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, है ना, सर एमटेक एडमिशन इन आईआईटी बी एक्सी के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर, ये बेटा यस शुक्ला लिसन केयरफुली बेटा, वट एवर द प्रोसीजर दे विल फॉलो फॉर अदर पेपर, सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर एक्सी पेपर आल्सो। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। इफ दे वांट टू टेक डायरेक्टली दे विल टेक डायरेक्टली, और अगर उनको रिटर्न कंडक्ट करना है या इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो वो करेंगे, है ना, ठीक है। तो वो उससे पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो भी चीज के लिए मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं उसी के लिए एक्सी वाले भी एलिजिबल हैं। सॉलिड मैकेनिक्स आई विल नॉट टीच बेटा। थर्मोडायनामिक्स इज गोइंग ऑन सर ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर एक्सी, थर्मोडायनामिक्स बेटा, अभी थर्मोडायनामिक्स चल रहा है। दर्शन एक बार वो देख लेना। कोर ब्रांच बेटा, कोर ब्रांच और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस विच आर वेरी गुड, लाइक आईआईटी बॉम्बे का IE&OR, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो डिपेंड करता है, ऐसा मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कोर ब्रांच ही बेस्ट है। अगर बाई चांस आपको इंटरेस्ट है IE&OR में तो आईआईटी बॉम्बे का IE&OR इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन। बेटा जो ISC बेंगलोर का पूछना एक बार देख लेना, लिस्ट मैंने बनाई हुई है। एक्सी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कहां से करें बेटा, एक्सी का एक कोर्स लॉन्च हुआ था प्लस पे, अभी मुझे देखना पड़ेगा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्लस पे एक्सी का एक स्पेसिफिक कोर्स चल रहा था, एक बार वो देख लेना आप। बी केयरफुल विद एक्सी ए मैथमेटिक्स, यहां पर अगर आपने स्कोर कर लिया यू विल बी गेटिंग वेरी गुड रैंक। XCA mathematics, engineering mathematics is generally difficult as compared to mechanical mathematics, so focus little on XCA mathematics, और उसके लिए बहुत अच्छा टीचर आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा बेटा,
आप 900 प्लस गेट स्कोर का प्लान करो। नीतीश, डेफिनेटली यू कैन गेट आईआईटी बॉम्बे डिजाइन विद द हेल्प ऑफ एक्सी गेट स्कोर। यू शुड एम फॉर 900 प्लस गेट स्कोर, है ना सर। आईआईटी और पीएसयू ये तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर बेटा, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको आईआईटी में जाना है या पीएसयू में जाना है। मतलब एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर लो पर्सनली, तो मैं आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके थोड़ा सा आपको बता सकता हूं। बट मोर और लेस वेदर यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन और फॉर जॉब, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एंड योर इंटरेस्ट। हाँ उमा सर, उमा महेश सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आई डिडंट गेट आईआईटी बॉम्बे इन बीटेक। बेटा आप तो एक्सी में प्रिपेयर करो, एक्सी से प्रिपेयर करो, आप एक्सी से प्रिपेयर करो। अगर आपका अच्छा गेट स्कोर होता है, या फिर आप मैकेनिकल से प्रिपेयर करो, अगर आपका अच्छा गेट स्कोर होता है तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा डिजाइन, नो प्रॉब्लम। यस, इफ समवन इज फ्रॉम पीआई ब्रांच कैन दे अपीयर फॉर एमई एंड एक्सी टुगेदर? आई थिंक इट इज अलाउड, आई थिंक इट इज अलाउड। Which is easier way to enter in IIT mechanical XC? 100% without any doubt XC is easier way to enter IIT, क्योंकि वहां पर आपको केवल 2 ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। I always tell XC is the gateway for IIT। ओमकार थैंक यू सो मच बेटा, ओमकार थैंक यू सो मच। निटी में जाने के लिए कितना गेट स्कोर होना चाहिए? 850 प्लस का प्लान कर लो। वैसे तो 800 पे भी आ जाता है कॉल, बट 850 प्लस प्लान करके चलो। पीआई से बीटेक जिनका है वो लिख सकते हैं, दे कैन राइट विद एक्सी एज सेकंड पेपर। फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स व्हाट वी शुड रेफ? बेटा जो लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देखना चाह रहे हैं, इफ यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। इफ यू कैन नॉट ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, ऑलरेडी मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है। यू गो टू माई प्ले लिस्ट, यू विल कम टू नो, है ना। ऑलमोस्ट मैंने काफी चीजें कवर करी हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस जो है वो कवर नहीं करा है, वो मैंने प्लस पे कवर किया हुआ है। यस, इज देयर लेस सीट इन एक्सी एज कंपेयर टू मैकेनिकल? ऐसा बेटा ओपन नहीं है ना गौरव, ये चीज अभी ओपन मतलब ये कोई डिस्क्लोज नहीं करता है, बट जो मेरा कॉमन सेंस बोलता है ऐसा होता होगा कि इंटरनली दे विल बी डिवाइडिंग सम सीट्स फॉर एक्सी, सम सीट्स फॉर मैकेनिकल, ऐसा होता होगा। सर बेस्ट कॉम्बो फॉर एक्सी मैंने बता दिया बेटा, 3 में से कोई 2 चूज कर लो। एक्सी बी फ्लूइड मैकेनिक्स, एक्सी डी सॉलिड मैकेनिक्स, एक्सी ई थर्मोडायनामिक्स। लास्ट के 2-3 साल के पेपर देख लो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। सिलेबस वाइज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सी बी में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्सी ई एंड एक्सी डी इज ऑलमोस्ट सेम। उमा सर से पढ़ लो बेटा, एप्टीट्यूड तो सेम आता है बेटा, डोंट वरी अबाउट द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का पेपर जो उस सेशन में, मतलब मान लो जो स्लॉट में हो रहा है एक्सी का पेपर, मान लो वहां पर किसी और ब्रांच का भी पेपर हो रहा है, तो जो उनका एप्टीट्यूड होगा वही इधर एक्सी का भी होगा। तो एप्टीट्यूड वाइज यू डोंट वरी, एप्टीट्यूड नॉर्मल ही होता है। प्रदीप आई विल मेक बेटा, आई विल मेक। सर एफएम एंड टीडी अ गुड चॉइस? मेरा तो यही था। In 2019 when I got all India rank 1, in 2020 when I got all India rank 1, my option was TD and FM, XCB FM, XCE TD, and I know the syllabus more or less, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया इसको पढ़ाते हुए भी, तो I have expertise on that particular syllabus, तो उसमें मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस एक अच्छी मिल जाती है। सर क्या YouTube पर आपने थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कवर किया है? अभी तो चल रहा है बेटा, अभी तो चल रहा है। ओपन सिस्टम एनालिसिस इज गोइंग ऑन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन 550 बेटा, मंडे टू सैटरडे 5:50 PM आई एम टीचिंग थर्मोडायनामिक्स 2.0 ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओके, कैन वी गिव एमई विद पीआई? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है बेटा, पीआई वाला ऑप्शन नहीं है। एमई प्लस एक्सी वाला ऑप्शन है, पीआई प्लस एक्सी वाला ऑप्शन है। सर गेट 850 की तो बात हुई थी, ये देखो
इस बच्चे के कितना था गेट स्कोर, मैंने दिखाया था आपको। इस बच्चे का देखो एग्जैक्ट 850 है, 850 है इस बच्चे का, एग्जैक्ट 850 गेट स्कोर है और इसके मार्क्स थे 76। तो 76 मार्क्स के लिए तैयारी करो। हाँ 848 ना, 848, तो 76 मार्क्स थे, 76 मार्क्स पर। लेकिन हर साल चेंज होता है बेटा, ऐसा आप बोल नहीं सकते। मैं तो यही बोलूंगा कि आप ना मेहनत करो अच्छे से एंड ट्राई टू गेट 80+ मार्क्स। सर इज स्टैंडर्ड बुक क्वेश्चन अलोंग विद, बेटा तिलक ये स्पैमिंग मत करो बेटा। सर ड्रॉपर्स का एमटेक के प्लेसमेंट में नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता रवनीत, देयर विल बी नो इफेक्ट बेटा, देयर विल बी लिटरली नो इफेक्ट। फूड टेक्नोलॉजी प्लस थर्मोडायनामिक्स यू कैन चूज, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा, यस यू कैन चूज। चूज कर सकते हो बेटा, है ना। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट, एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट, किसी का कोई और डाउट है? विपुल आई थिंक एक मैं देखो अभी से तो बोलना नहीं चाहिए बिकॉज राइट नाउ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ टाइम। मैं देखो आपको बताता हूं दोज हु आर इन थर्ड ईयर, जो लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, जो लोग अभी थर्ड, सुन लो ध्यान से बेटा, दोज हु आर इन थर्ड ईयर, अगर आपके पास टाइम की कमी है, माई फर्स्ट प्राइमरी सजेशन यू राइट विद बोथ मैकेनिकल प्लस एक्सी, यू राइट GATE 2022 with both mechanical and XE. But somehow if you are feeling, अगर आपको फील आ रहा है कि सर मैं उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, then you can prepare with XE, only XE। 2 सब्जेक्ट चूज करो, मैथमेटिक्स चूज करो, एप्टीट्यूड चूज करो और पूरा अच्छे से मेहनत कर लो and you get some good rank in XE। The moment you are getting good rank in XE, you will be securing one seat for higher education। आपकी एक सीट तो पॉकेट में आ गई because GATE score is valid for 3 years। जो GATE का स्कोर होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो उस GATE स्कोर से आप अगले साल एडमिशन ले सकते हैं, 2022 के बाद जो अगला साल आएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन तभी करना है ये जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पूरा मैकेनिकल प्रिपेयर करने का। माई फर्स्ट प्रेफरेंस यू शुड प्रिपेयर फॉर मैकेनिकल प्लस एक्सी। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूं, देन गो फॉर एक्सी, गेट सम गुड रैंक, मेक द कमांड ऑन 4 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड 2 सब्जेक्ट वट एवर यू आर चूजिंग, एंड देन आफ्टर GATE 2022 यू प्रिपेयर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल। मैं बना दूंगा बेटा श्रद्धा, है ना, टेस्ट सीरीज फॉर GATE XE। बेटा मुझे फॉलो करते रहो, GATE XE का मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूं। कीप फॉलोइंग मी, मैं आपको बहुत सारी चीजें करने वाला हूं GATE XE से रिलेटेड। जितने भी XE के एस्पिरेंट्स हैं, यू कीप फॉलोइंग मी, आई विल बी डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर यू। 3 साल के लिए वैलिड होता है बेटा मानस, योर GATE स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years। सर शुड आई गो फॉर GATE XE इफ आई एम फ्रॉम मैकेनिकल? आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यू कैन प्रिपेयर फॉर GATE XE आल्सो। सर मेरा टेक्सटाइल बैकग्राउंड है, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा XE पेपर? मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है थर्मो एंड फ्लूइड का, बट आई लव योर फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर्स। बट आप एक काम कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, यू जस्ट सी द प्रीवियस GATE XE पेपर्स, उसमें आपको उसको आपको सॉलिड मैकेनिक्स का भी मिल जाएगा, उसमें थर्मो का भी मिल जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का मिल जाएगा, और भी जो हैं वो सब मिल जाएंगे। एक बार आप सब देख लो, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो। इज देयर एनी स्पेसिफिक बैच फॉर GATE XE? बेटा आई एम टेकिंग ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टेकिंग थर्मोडायनामिक्स ऑन अनअकैडमी प्लस, where I'm covering each and everything whatever is required for GATE XE। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ XE के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आ जाओ, अभी भी टाइम है। यस सोमेश,
बिल्कुल बिल्कुल, आप 3 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने गेट स्कोर पर। सर मैं सेकंड ईयर में हूं, सेकंड ईयर वाले एलिजिबल नहीं है बेटा, थर्ड ईयर्स आर एलिजिबल फॉर राइटिंग गेट 2022। एप्टीट्यूड करवा दो, ओके ठीक है बेटा। दरसु यू शुड मार्क्स वाइज 80+ फिक्स कर लो, आप लोग सबके सब 80+ मार्क्स फिक्स कर लो कि 80+ मार्क्स तो होने ही चाहिए। TDN FM तो मैं करवा रहा हूं अनअकैडमी प्लस पर, मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करवा दूंगा एक्सी ओरिएंटेड, डोंट वरी। हाउ टू गेट 60+ मार्क्स इन टेक्निकल सेक्शन। अगर आप 60+ मार्क्स के लिए एम कर रहे हैं आउट ऑफ 70, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की जरूरत है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस में रहकर अपनी प्रिपरेशन करो। शिवम क्या बोल रहे हैं, सर आपको फॉलो करके लग रहा है गेट तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बस उसी लेवल पे प्रिपेयर करना है। गेट ME प्लस XE विच इज डिफिकल्ट। मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न्ड, ME में आपको लगभग 12 सब्जेक्ट पढ़ने। इन मैकेनिकल यू हैव टू लर्न ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स। इन XE you have to learn only 4 subjects: mathematics, aptitude and 2 technical. But if depth of the question is required, if depth of the question is concerned, 100% in XE you will be having little difficult questions as compared to ME. लेकिन अगर आपने 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, if you have studied 4 subjects thoroughly, then you will be able to answer. सर XE से IIT बॉम्बे में डिजाइन या थर्मल ब्रांच मिल सकती? बेटा मिल सकती है ना, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। With the help of GATE XE score, you can get thermal and design, जो भी आपको चाहिए, थर्मल और डिजाइन बेसिकली। मानस फॉलो कर सकते हो बेटा। सर 4th सेम में हूं, 2022 दे सकता हूं। 4th सेम में हो तो थर्ड ईयर में आ जाओगे ना तब तक तो। When you are writing your GATE 2022, you must be in third year at that time. अभी थर्ड ईयर नहीं, उस टाइम पर। What is the advantages of GATE mechanical as compared to GATE XE? Advantage, you can go to PSUs बेटा, आप PSUs में भी जा सकते हैं। If you are in 4th semester right now, I think by the January Feb 2022 you will be in third year na, you can write. Okay Naidu beta, okay. I will make one video on that. किसी का कुछ और डाउट है? Anyone else is having any other doubt? उम्मीद करता हूं आज आपको, सर गेट सिविल का नहीं बताओगे क्या? बेटा आज तो गेट XE का है सेशन। टुडे वी आर हैविंग द सेशन ऑन गेट XE। मेरे सिविल के भी काफी स्टूडेंट लाइव हैं रे बाबा। विच कॉम्बिनेशन इज बेस्ट, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मेरा कॉम्बिनेशन था थर्मोडायनामिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स, XEB फ्लूइड मैकेनिक्स, XEE थर्मोडायनामिक्स। निटी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, यू कैन ज्वाइन निटी बॉम्बे विद द हेल्प ऑफ गेट XE स्कोर, है ना। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप योर ऑल द डाउट्स आर क्लियर नाउ। चलो फिर सेशन एंड करें। सेशन एंड करें बेटा। आदित्य अभी तो जैसे जैसे अभी देखो, जैसे जैसे अभी 2 पेपर वाली सिचुएशन आई है, तो अभी वो सिंगल पेपर वाली तो एकदम ही अलग हो गई, तो अब आप कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ यू कैन नॉट कंपेयर। मैं आपको टेक्निकल में बता देता हूं। इन टेक्निकल I got 66.33 out of 70 TD plus FM। ये बात कर रहा हूं मैं गेट 2020 की, है ना। सो इन गेट 2020 I have written with this thermodynamics and fluid mechanics, XEE thermodynamics, XEB fluid mechanics, and I secured 66.33 out of 70 in technical part. Yes, you can get NIT नहीं बेटा, निटी बॉम्बे मिल जाएगा, NIT नहीं मिलेगा।
है ना। हाउ टू मैनेज एक्सी एंड एमई बोथ, बेटा मुझे कांटेक्ट कर लेना जो लोग दोनों मैकेनिकल एंड एक्सी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। मैं एक आपकी स्ट्रेटेजी बनवा दूंगा, है ना, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी आप लोग की बना दूंगा ताकि आपको दोनों की तैयारी हो जाए। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो मुझे 100 आवर्स एक्स्ट्रा दे देना, मेरे को 100 घंटा एक्स्ट्रा दे देना, आपकी मैकेनिकल की भी तैयारी हो जाएगी, एक्सी की भी तैयारी हो जाएगी। इन आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी दो पेपर को ले लो, किसी भी दो सब्जेक्ट को ले लो और आप लिख सकते हो, है ना। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए एलिजिबल हो मैकेनिकल की। प्रांतिक, मैंने आपका आंसर दे दिया बेटा। थैंक यू सो मच बेटा श्रद्धा, थैंक यू सो मच बेटा। किसी का कुछ और डाउट है? एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? कैन यू गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर? बेटा नेकी 10 टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। नो बेटा नाइडू, देयर विल बी नो डिफरेंस whether you are entering the IIT through mechanical or XC gate score, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता, your placement will not be hampered। थैंक यू सो मच आयुष, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आई थिंक नेहा यू कैन अपीयर बेटा। सर विल यू स्टार्ट टर्बो मशीनरी इन यूट्यूब? इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल बेटा, आप लोग जो भी बोलोगे मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। वट एवर यू पीपल विल से आई विल डू। मिनिमम कितना स्कोर चाहिए? मैं अगर आपको बोलूं, आप बेटा एक्सी में 75 प्लस मार्क्स का एम करो। एक्सी से मैनेजमेंट के लिए मैंने बता दिया बेटा, निटी बॉम्बे इज एलिजिबल, है ना, एंड in IIC Bangalore you are having one management course that is also eligible। चलिए किसी और का कोई और डाउट है? किसी और का कोई और डाउट है? चलो ठीक है।